So unicast routing, next chapter is unicast routing. First thing we have to see what is the meaning of unicast routing. Okay, unicast routing किसको बोलते हैं हम लोग? So see, unicast routing means it is a process of forwarding packets from a source to destination. Okay, it is a process of forwarding packets from source to destination. So it is point-to-point communication. Unicast routing is unidirection. It is point-to-point communication. Means sender and destination, sender and receiver, it is directly connected. Because they are directly connected. So there is a point-to-point connection. So to perform, see, unicast routing में first thing we have to understand unicast routing बोलते हैं किसको. ठीक है. तो unicast means transmission. uni लिखा है ना, uni means single, right? So transmission from a single sender to a single receiver. Unicast means transmission from single sender to single receiver. So it is a point-to-point communication between sender and receiver. Okay, it is a point-to-point communication between sender and receiver. So there are some protocols, कुछ protocols है for the unicast routing. Okay, transmission करने के लिए from single sender to single receiver, there are some protocols. Okay, some protocols are used. Before seeing that protocol, first see what is the meaning of intra and inter-domain routing. Intra-domain routing means routing inside an autonomous system. Inside autonomous system, that is referred to as intra-domain, and routing between autonomous system. Between autonomous system and different autonomous system. Autonomous system 1, autonomous system 2. Let us consider 3 autonomous system. 1, autonomous system 1, 2 and 3. उसके बीच में जो राउटिंग होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर डोमेन. डिफरेंट नेटवर्क्स, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में जो राउटिंग हो रहा है, दैट इज इंटर डोमेन. और विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम, दैट इज इंट्रा डोमेन. ओके, राउटिंग मीन्स क्या करना? ट्रांसमिशन, डिफरेंट पाथ के थ्रू ट्रांसमिशन करना, दैट इज कॉल्ड एज राउटिंग. इंट्रा इंटर डोमेन राउटिंग. ओके, नाउ सी, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिया ऑटोनोमस सिस्टम. अगर ये राउटर है, ठीक है, 1 2 3, अगर इसी के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है विद इन दी, ये 4 ऑटोनोमस सिस्टम है, ठीक है, अगर विद इन दी ऑटोनोमस सिस्टम ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा. ओके, और ये 4, दैट इज कंसिडर 4 ऑटोनोमस सिस्टम है. अगर ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन ऑटोनोमस सिस्टम टू नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, इसके बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम, दैट इज इंटर डोमेन. ओके, so intra and inter. Now there are some protocols, okay, that is used for the unicast routing. It is classified into two types: intra-domain and inter-domain. Intra-domain and inter-domain. Intra-domain means within the autonomous system. तो उसके लिए दो प्रोटोकॉल्स है, डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट. डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट. ओके, distance vector routing uses RIP protocol, and link state it uses OSPF protocol. ठीक है, लिंक स्टेट क्या यूज करता है? OSPF. लेट्स सी लिंक स्टेट क्या होता है. फर्स्ट, डिस्टेंस वेक्टर के अंदर दो है, एक लिंक स्टेट है और एक RIP है. See, link state routing means each node
इन द डोमेन हैज द एंटायर टोपोलॉजी ऑफ द डोमेन, जितने भी नोड प्रेजेंट है नेटवर्क में, हैज द एंटायर टोपोलॉजी ऑफ डोमेन, उनके पास पूरा स्ट्रक्चर उनको पता है डोमेन का, नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है। द नोड कैन यूज डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम टू बिल्ड अ राउटिंग टेबल। नोड जो प्रेजेंट है नेटवर्क में, दे यूजिंग दिस एल्गोरिथम, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ओके, राउटिंग टेबल को रेडी करने के लिए। तो लिंक स्टेट कहाँ पे यूज होता है? ओएसपीएफ में। कहाँ पे यूज होता है? ओएसपीएफ में, ओके। अभी यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग, कितने नोड्स प्रेजेंट है? ए बी सी डी ई, सबका कॉस्ट है। ए को डी डी पे रीच करने के लिए 3 कॉस्ट है, ए को बी पे रीच करने के लिए 5 है, ए टू सी 2 है, बी टू सी 4 है। ये सब में, सब पाथ में कुछ नंबर्स, कुछ कॉस्ट असाइन है, ठीक है। यहाँ पे देखो हर एक के पास, हर एक नोड के पास, ईच नोड इज हैविंग द एंटायर टोपोलॉजी स्ट्रक्चर, ठीक है। ए के पास देखो टोपोलॉजी स्ट्रक्चर है, बी के पास टोपोलॉजी स्ट्रक्चर है, सी के पास है, डी के पास है, एंड ई के पास है। ईच नोड इज हैविंग इट्स, ईच नोड इज हैविंग द topology structure of the domain. So based on the topology structure, based on the topology structure, the node can find the best route, best shortest route. लिंक स्टेट में शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो है वो फाइंड किया जाता है। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? लिंक स्टेट राउटिंग यूजेस विच प्रोटोकॉल? लिंक स्टेट राउटिंग यूजेस ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। The link state routing uses open shortest path protocol, means it finds the shortest path to reach to the destination. तो सबके पास, सब नोड के पास ये है, राउटिंग टेबल है, पूरा स्ट्रक्चर है टोपोलॉजी का, so it can find the best possible path, ठीक है। ए ए स्टेट्स ऑफ लिंक, ए देखो कहाँ से कनेक्ट है, ए बी से कनेक्टेड है, ठीक है, ए डी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे दिया बी स्टेट्स ऑफ लिंक। तो ये जो ये येलो पार्ट में जो सर्कल दिया है, ठीक है, ए किससे? बी से है, ए सी से है, और ए डी से। कितना आ गया? 5 हो गया, देन 2 हो गया, 3, तो 8 हो गया इसका कॉस्ट, ठीक है। तो सब, हर एक लिंक का कॉस्ट है। बी का 5, बी ए से है, बी सी से है, और बी ई से कनेक्टेड है। 5 4 9 और 12, ठीक है। तो ऐसा दिखा रहा है कि लिंक आपस में देर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, एंड सबका क्या है? कॉस्ट असाइन है। तो बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, क्या इट कैन फाइंड द बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ, और यू कैन से बेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। एंड लिंक स्टेट राउटिंग यूजेस विच प्रोटोकॉल? ये याद रखना है हम लोग को, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। यहाँ पे एग्जांपल दिया सी, एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। ये टोपोलॉजी, लेट अस कंसीडर ये नेटवर्क है, ठीक है, ए बी सी डी ई। रूट, सबसे पहले रूट नोड क्या है मेरा? ए है, तो अभी तक 0 पे, ठीक है। सेट रूट टू ए एंड मूव ए टू टेंटेटिव लिस्ट। अभी ए कहाँ पे मूव हो रहा है? ए इज कनेक्टेड टू बी सी एंड डी, ठीक है। मूव ए टू परमानेंट लिस्ट एंड ऐड बी, कहाँ क्या क्या ऐड किया इसमें? बी सी एंड डी, ठीक है। ऐड करने के बाद सी जो है, सी को किससे कनेक्ट किए? सी इज कनेक्टेड टू ई, ठीक है। देन सी कनेक्ट होने के बाद ई मूव डी के बाद हम लोग क्या करेंगे? आफ्टर कनेक्टिंग सी टू ई, ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग सी टू ई, अभी यहाँ पे देखो पहले ए बी, ए से जो भी कनेक्टेड डी, ठीक है, सी से कनेक्ट किए ई। तो ये परमानेंट लिस्ट क्यों लिखा है? टेबल में एंट्री होते जाएगा, जैसे तुम कनेक्ट करोगे सी से, अभी ई को कनेक्ट किए, यहाँ पे अगेन सी, पहले रूट नोड ए है, ठीक है, देन मूव ए टू दी परमानेंट लिस्ट। पहले वो परमानेंट लिस्ट में नहीं था, जब वो लिंक से कनेक्ट होगा वो परमानेंट लिस्ट में चला जाएगा, टेबल में ऐड हो जाएगा। तो ए इज इन द परमानेंट लिस्ट,
ठीक है। अभी क्या ऐड हुआ, बी सी डी। टेंटेटिव लिस्ट में क्या ऐड हो गया, बी सी डी, क्योंकि बी से कोई और कनेक्टेड नहीं है इसलिए वो टेंटेटिव लिस्ट में है। ठीक है। अभी सी से जैसे ई कनेक्ट हो गया, ठीक है, मूव सी टू, मूव, सॉरी, सी से क्या कनेक्ट हो गया, ई कनेक्ट हो गया, तो डी जो है परमानेंट लिस्ट में आ गया। ठीक है। देन मूव बी टू परमानेंट लिस्ट, मूव ई टू, जितने ही बाकी सब परमानेंट लिस्ट में आ गए। तो इससे क्या पता चल रहा है मुझे, देखिए, शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग ले रहे हैं यहाँ से। अभी ए से, अभी क्या किया हम लोग ने, सी यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए से सी, यू कैन सी शॉर्टेस्ट पाथ है, इसका कॉस्ट 2 है। ठीक है। देन सी से क्या कनेक्ट किया हम लोग ने, ई, क्योंकि ये सी से ई भी कनेक्ट कर सकते हैं, सी से बी भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का कॉस्ट क्या है, 4, तो सी से हम लोग ने ई कनेक्ट किए। ओके, तो कॉस्ट क्या हो गया, 6, समझ रहे हो, सी, ए सी ई, 4 + 2 6, ई का 6 हो गया, राइट। तो शॉर्टेस्ट पाथ यही बन रहा, अगर मैं ये कनेक्ट करती सी टू बी, तो ये क्या हो जाता, 5 और सी टू बी ना, 4 2 5, और यहाँ से बनता 2 7 4 9, ज्यादा होता था ये। कॉस्ट कैलकुलेट करने, समझ रहे कैसे कैलकुलेट करना है शॉर्टेस्ट पाथ का। ये जो कॉस्ट है, रीच करने के लिए, नोड को रीच करने के लिए जो शॉर्टेस्ट कॉस्ट है, अगर वो हम लोग लेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री रेडी हो जाएगा। तो एग्जाम में ट्री बनाने नहीं आएगा, बस लिंक स्टेट राउटिंग में व्हाट इज लिंक स्टेट राउटिंग और उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। ठीक है, ओएसपी प्रोटोकॉल इज यूज, बट इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस डायग्राम यू कैन आस्क। एक बार उसको गो थ्रू करो। शॉर्टेस्ट पाथ ये बना, ए से ई को, मतलब ए को ई पे रीच करवाने के लिए, फ्रॉम ए टू ई, ये लिंक जनरेट हुआ, ए सी ई, ए सी ई, ये शॉर्टेस्ट रूट है। शॉर्टेस्ट जो रूट है ये वाला, ए सी ई, लास्ट में जो रेडी हुआ है। अगर हम लोग ए टू बी जाते, फिर बी टू ई जाते, 7 हो जाता ना, ए टू बी 5 हो गया, फिर बी टू ई 3 ऐड हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। तो शॉर्टेस्ट क्या है, शॉर्टेस्ट यही वाला है ना, ए सी, और सी से ई, बिकॉज 6 हो रहा है इसका कॉस्ट। एनी डाउट इन दिस, सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ रेडी हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, शॉर्टेस्ट पाथ रेडी हुआ है बेस्ड ऑन दी कॉस्ट, जो हर एक लिंक का कॉस्ट दिया हुआ है। ओके, अभी हम लोग यही कंटिन्यू कर रहे हैं, लिंक स्टेट राउटिंग में विच प्रोटोकॉल इज यूज, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल इज यूज। कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ है, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल। ठीक है। और ओएसपीएफ प्रोटोकॉल कौन से इसके लिए, इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन, इंट्रा डोमेन के अंदर है। इंट्रा डोमेन के अंदर ओएसपीएफ प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द लिंक स्टेट राउटिंग। ठीक है, फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ, टू डिसाइड द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है। और ये इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है, इंट्रा, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इंट्रा डोमेन। ओके, so these topics we have to discuss in OSPF, areas किसको बोलते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ लिंक्स। नाउ सी, ओएसपीएफ क्या है, तुम्हारा कौन सा प्रोटोकॉल है, इंट्रा डोमेन, मीन्स राउटिंग विद इन दी ऑटोनोमस सिस्टम। इंट्रा डोमेन मीन्स विद इन दी ऑटोनोमस सिस्टम। एरियाज इन एन ऑटोनोमस सिस्टम, सी दिस फिगर, ये एक पूरा ऑटोनोमस सिस्टम है तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, एरिया, इसको एरिया में डिवाइड कर दिए, एक ऑटोनोमस सिस्टम को यू हैव डिवाइडेड इनटू एरिया।
एरिया 0, एरिया 1 और एरिया 2। मेन एरिया ये वाला है तुम्हारा बैकबोन एरिया। ये बैकबोन से बाकी के एरियाज कनेक्टेड है। ठीक है, लेट अस कंसीडर ये मेन तुम्हारा यहाँ पे सर्वर पूरा रखा हुआ है। ये मेन बैकबोन एरिया है और उससे कनेक्टेड दो डिपार्टमेंट है और दो एरिया है। ठीक है, एरिया 1 एंड एरिया 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी नेट, ये जो सर्कल में जो क्रॉस दिया दैट इज राउटर। ठीक है, नेटवर्क जो है, ठीक है, एक सिंगल नोड का नेटवर्क किससे कनेक्ट, दूसरे नोड से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ राउटर। नोड्स प्रेजेंट है और राउटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये देखना है एरिया बॉर्डर राउटर। एरिया बॉर्डर राउटर मीन्स one area is connected with other area with the help of area border router. To connect one area with the other area, area border router is used. ठीक है, जो बॉर्डर जो बाउंड्री राउटर है टू कनेक्ट वन एरिया विद अनदर एरिया, कौन सा राउटर है उसको हम बोलते हैं एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एरिया 2 किससे कनेक्ट हो रहा है, एरिया 0 से। दैट राउटर इज कॉल्ड एज एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, अब बैकबोन राउटर मीन्स जो मेन एरिया है, जो तुम्हारा मेन एरिया दैट इज द बैकबोन राउटर। ठीक है, तो बैकबोन राउटर से एरिया बॉर्डर राउटर इज कनेक्टेड बिकॉज इससे कनेक्ट होना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि बैकबोन के हेल्प से ही तुम क्या कर सकते हो, दूसरे नेटवर्क में अगर तुमको कुछ ट्रांसमिट करना है तो वो बैकबोन राउटर से ही पॉसिबल है। ये दोनों का एडअप जो है, इंफॉर्मेशन एडअप किसमें होगा, बैकबोन में ही होगा, बैकबोन राउटर में। ठीक है, और जो राउटर टू कनेक्ट वन ऑटोनोमस सिस्टम विथ अनदर ऑटोनोमस सिस्टम, विच राउटर इज यूज, वो राउटर को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ये सब कीवर्ड्स पता होना चाहिए। एरिया बॉर्डर राउटर किसको बोलते हैं, बैकबोन राउटर किसको बोलते हैं, एंड ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर का मीनिंग क्या है। टू कनेक्ट वन ऑटोनोमस सिस्टम विद अनदर ऑटोनोमस सिस्टम, दैट राउटर इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। तो यहाँ पे लिखा भी टू अदर ऑटोनोमस सिस्टम। ओके, नाउ सी टाइप्स ऑफ लिंक इन ओएसपीएफ। ये टाइप्स ऑफ लिंक कितना है ओएसपीएफ में, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो सकता है, ट्रांसिएंट है, स्टब है और वर्चुअल है। 4 टाइप्स के लिंक होते हैं ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में, पॉइंट टू पॉइंट, ट्रांसिएंट, स्टब एंड वर्चुअल। पॉइंट टू पॉइंट मीन्स ओनली द एड्रेस ऑफ द नेबर राउटर इज रिक्वायर्ड। Point to point means direct connection, one sender and one receiver, and there is a direct connection. So for that point to point connection, address पता होना चाहिए नेबर राउटर का। ठीक है, ट्रांसिएंट मीन्स, ट्रांसिएंट में क्या होना चाहिए, एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड राउटर। जो मतलब डेस्टिनेशन जो राउटर है, जो डेस्टिनेशन डिवाइस है, तो डेस्टिनेशन डिवाइस का जो राउटर है वो पता होना चाहिए, उसका एड्रेस पता होना चाहिए। एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड राउटर, राउटर एड्रेस पता होना चाहिए ट्रांसिएंट में। स्टब, स्टब में नेटवर्क मास्क पता होना चाहिए, मीन्स नेटवर्क एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये याद रखो ये वाला पार्ट। स्टब में नेटवर्क एड्रेस पता होना चाहिए और वर्चुअल, वर्चुअल में नेबर राउटर का एड्रेस पता होना चाहिए। वर्चुअल कनेक्शन करने के लिए नेबर राउटर का एड्रेस पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पॉइंट टू पॉइंट के लिए एड्रेस ऑफ नेबर राउटर, ट्रांसिएंट के लिए एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड राउटर। ठीक है, स्टब के लिए नेटवर्क एड्रेस एंड वर्चुअल के लिए एड्रेस ऑफ नेबर राउटर। ये सब नहीं है, हाँ, तुम लोगों को जितना इसमें एक्स्ट्रा थिंग्स दिया हुआ है। हाँ, वन इम्पोर्टेंट थिंग, ओएसपीएफ पैकेट जो है, अगर इफ यू हैव यूज ओएसपीएफ प्रोटोकॉल टू फाइंड दी शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये जो प्रोटोकॉल है ओएसपीएफ,
उसके जो पैकेट्स है वो किस में एनकैप्सुलेट रहते हैं, आईपी डेटाग्राम्स में। ठीक है, आईपी डेटाग्राम। आईपी डेटाग्राम्स मीन्स एक पैकेट को तुमने ब्रेक डाउन किया स्मॉलर पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड एज डेटाग्राम। ठीक है, तो आईपी डेटाग्राम मीन्स तुम्हारा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो वर्जन 4 है, IP वर्जन 4, उसके पैकेट को हम लोग डेटाग्राम्स में डिवाइड, उसके पैकेट्स को हम लोग डेटाग्राम बोलते हैं, राइट। क्यों डेटाग्राम्स में डिवाइड होता है, बिकॉज राउटर का कैपेसिटी नहीं होता समटाइम्स लार्ज मैसेज हैंडल करने के लिए, दैट्स व्हाई द पैकेट इज डिवाइडेड इनटू डेटाग्राम। ठीक है, तो OSPF पैकेट जो है वो कहाँ पे यूज होता है, IP वर्जन 4 का जो फॉर्मेट है, पैकेट का फॉर्मेट है, वहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल इज यूज, ओके, टू फाइंड दी शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पे देखो, जस्ट वी हैव सीन जो टाइप्स ऑफ लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट, ट्रांसिएंट, स्टब एंड वर्चुअल। पॉइंट टू पॉइंट में यू कैन सी डायरेक्ट कनेक्शन है, राउटर, एक राउटर यहाँ है, एक राउटर यहाँ है, दैट इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ट्रांसिएंट में देखो, ट्रांसिएंट नेटवर्क क्या है, दिस इज ट्रांसिएंट लिंक। ये टाइप्स ऑफ लिंक, यहाँ 4 टाइप्स ऑफ लिंक याद रखो, ये ट्रांसिएंट, एक है पॉइंट टू पॉइंट, ट्रांसिएंट, स्टब एंड वर्चुअल। दिस इज अ फिगर ऑफ ट्रांसिएंट लिंक, ऑब्जर्व दिस फिगर। ओके, नाउ सी ट्रांसिएंट नेटवर्क में यू कैन सी राउटर्स जो है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ राउटर्स, मतलब मेनी राउटर्स आर अटैच्ड टू अ नेटवर्क। ठीक है, मेनी राउटर्स आर अटैच्ड टू अ नेटवर्क, राउटर A B C D E। इंटरनेट कनेक्शन पे, हमारे इंटरनेट कनेक्शन पे मेनी राउटर्स आर अटैच्ड। ठीक है, तो अनरियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन एंड रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन दिया। अनरियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इट इज नॉट पॉसिबल A B से कनेक्ट है, B C D से। ये कैसे होगा कनेक्शन, सी एक डेजिग्नेटेड राउटर होगा। ठीक है, एक डेजिग्नेटेड राउटर से जितने भी तुम्हारे ये है राउटर्स है A B C D E, वो कनेक्टेड है। और डेजिग्नेटेड राउटर जो OSPF में यूज होता है, सी व्हाट इज डेजिग्नेटेड राउटर वो पता होना चाहिए। OSPF में एक राउटर को डेजिग्नेटेड राउटर बनाया जाता है। ठीक है, तो एक राउटर को डेजिग्नेटेड राउटर बनाया जाता है मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेजिग्नेटेड राउटर वी कैन ऐड अदर राउटर्स ऑल्सो। तो उससे क्या होगा, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क रेडी करने के लिए OSPF क्या करता है, एक राउटर को डेजिग्नेटेड राउटर बनाता है, और जितने भी अदर राउटर है वो क्या करता है, डेजिग्नेटेड राउटर से ऐड कर देता है फॉर द बैकअप पर्पस। ठीक है, फॉर द बैकअप पर्पस। तो एक डेजिग्नेटेड राउटर है, एक मेन राउटर है, या यही राउटर से पूरा क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होता है। मतलब जो भी रिक्वेस्ट सेंड करना है, जो भी पैकेट ट्रांसमिट करना है, एक मेन राउटर के थ्रू होता है, दैट इज उसको, वो राउटर को हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड राउटर। डेजिग्नेटेड राउटर से जो भी राउटर ऐड है, दैट इज बैकअप राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। ये सब बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर है, A B C D E। ठीक है, तो ट्रांसिएंट नेटवर्क, ये तुम्हारा क्या है, A B C D E, समझो इतने राउटर्स प्रेजेंट है। ठीक है, मेनी राउटर्स आर प्रेजेंट,
तो many routers are present, so what we can do in realistic, what happens, एक डेजिग ओएसपीएफ क्या करता है, इट एलिप्स, मतलब डिसाइड करता है कौन सा डेजिग्नेटेड राउटर रहेगा बैकबोन राउटर, और वो बैकबोन राउटर में जितने भी तुम्हारे राउटर्स है, ठीक है, वो ऐड हो जाएंगे फॉर द बैकअप पर्पस। स्टब नेटवर्क मीन्स ऐसा नेटवर्क जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है कोई अदर नेटवर्क का, अपना एक अकेला देखो राउटर यहाँ पे है, ठीक है, तो ये अकेला नेटवर्क है, मतलब इसके पास कोई नॉलेज नहीं अदर नेटवर्क के कनेक्शन के लिए, इसका कनेक्शन किसी से नहीं हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टब नेटवर्क। नेटवर्क विच यू कैन से विथ नो नॉलेज ऑफ अदर नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड एज स्टब नेटवर्क, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेशन बस किया है, सिर्फ डेजिग्नेटेड राउटर से कनेक्ट है वो बस, मतलब इसके पास है मेन राउटर है पर वो कोई और नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हो पा रहा है, कोई नॉलेज नहीं है इसके पास कोई अदर नेटवर्क का, उसको हम लोग बोलते हैं स्टब नेटवर्क। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्टब नेटवर्क विथ नो नॉलेज ऑफ अदर नेटवर्क। तो व्हाट वी हैव कवर्ड, सी अगेन देखते हैं। जो स्लाइड ये नहीं है ना, तुम लोग को नहीं है, आई विल डिलीट इट। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन में डिवाइडेड है। तो इंट्रा डोमेन में वी हैव सीन लिंक स्टेट, ठीक है, टू जनरेट दी शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए लिंक जनरेट करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए ओएसपीएफ प्रोटोकॉल इज यूज, ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। Till now is it clear? OSPF stands for, OSPF stands for फुल फॉर्म क्या है ओएसपीएफ का? यस राइट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो लिंक स्टेट जो है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, ठीक है, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल इट इज इंटर और इंट्रा 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 डोमेन प्रोटोकॉल, राइट। तो ओएसपीएफ प्रोटोकॉल इट इज इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल and it is a link state routing protocol. Link state routing protocol means router क्या कर रहे हैं, राउटर्स दे आर शेयरिंग दी टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन, अपना इंफॉर्मेशन किसके साथ में शेयर करते हैं, नियरेस्ट नेबर के साथ में। क्यों? बिकॉज क्या पता चले उनको, उनको अपना ये पता चले, शॉर्टेस्ट पाथ पता चले, ठीक है। सो द लिंक इज जनरेटेड, शॉर्टेस्ट पाथ का लिंक क्या होता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स टू दी, फ्रॉम वन नोड टू दी अनदर नोड।